Hello everybody, a very good morning to all of you. This is Rusikesh Sahu from Odisha Adarsha Vidyalaya, Begana, Korai Jajpur, and I welcome you all to Standard 9 Civics class. So, my dear students, what we will learn today? Today we will discuss about the third major political institutions, that is judiciary. So just recap, just recall what we had discussed in our last class. So in our last class we had already completed the two major political institutions, that is parliament and executive. We had discussed about the parliament and the two houses of the parliament, and we had discussed that which house is more powerful, and we saw that Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha. Then we had discussed about the second major political institutions in India, that is executive. In executive we had discussed about the prime minister as an executive. Thereafter we had discussed about the council of minister. Then after that we had discussed about the president and the power functions of the council of minister, power and functions of the prime minister, power and functions of the president. So this topic executive part we have already completed. Then judiciary. Today we will discuss about the judiciary, because judiciary is the last and the most important political institutions in a country. So today we will discuss about the judiciary in details. So let's start judiciary. The judiciary. So first of all, let's connect it with the story of office memorandum. तो जब हम लोगों ने ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में पढ़ा था, वी हैड डिस्कस दैट द मंडल कमीशन, व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशंस रिकमेंडेशन, एंड गवर्नमेंट फाइनली इम्प्लीमेंट दैट मंडल कमीशन रिकमेंडेशन इन द ईयर 1990. After its implementation, several people support the decision of the government and support the Mandal Commission's recommendation, and several people also oppose against the decision and they are against the Mandal Commission's recommendation. So that's why several people mostly filed a case in Supreme Court regarding the Mandal Commission's recommendation. And we saw finally whenever this the dispute arises between different group of people, कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे तो उसी टाइम पर कुछ लोग इसको विरोध कर रहे थे. तो जो लोगों को रिजर्वेशन मिलने वाला था वो लोग इस जो कि लॉ को सपोर्ट कर रहे थे, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को सपोर्ट कर रहे थे, एंड दोज हु आर नॉट गेटिंग एनी फैसिलिटीज फ्रॉम दिस रिकमेंडेशन, मंडल कमीशन रिकमेंडेशन, डेफिनेटली दे आर स्टार्टेड अपोजिंग दिस डिसीजन, दे आर अगेंस्ट द डिसीजन. सो दैट्स व्हाई बहुत सारे ऐसे जो कि सेवरल पीपल, सेवरल ग्रुप ऑफ पीपल्स एंड सेवरल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस फाइल्ड डिफरेंट केसेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन डिफरेंट हाई कोर्ट्स. तो बहुत सारे कोर्ट में इसका रिगार्डिंग जो कि बहुत सारे केस भी फाइल किया गया था. तो उसके बाद में हमने क्या देखा, दैट डिस्प्यूट्स रिजॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट. Supreme Court mostly interpret that law and validate the constitutional validity of that law and order the government to for some modification. तो उसमें कुछ modification करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था. तो हमने वहां पर क्या देखा, दैट सुप्रीम कोर्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स. तो जब कोई डिस्प्यूट्स होता है तो उस टाइम पर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का जो क्षमता होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास था, और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर क्या किया, वो जो डिस्प्यूट आया था मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को लेकर और सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसीज एसीबीसी को लेकर, उस टाइम पर उस डिस्प्यूट्स को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो कि रिजॉल्व किया था. सो यहाँ पर हमने पता चला, जैसे मैंने कहा कि इससे क्या पता चलता है, इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो कि जुडिशियरी कितना पावरफुल इंस्टीट्यूशन होता है वो हमें पता चला. वी आर एबल टू नो दैट जुडिशियरी फाइनली रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द ऑफिस मेमोरेंडम, रिगार्डिंग द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिगार्डिंग द मंडल कमीशंस रिकमेंडेशन. बट हैव यू एवर थिंक व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ जुडिशियरी? क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि अगर हमारे कंट्री में जुडिशियरी नहीं होता तो उस टाइम पर इसके लिए क्या होता? क्योंकि मंडल कमीशन को लेकर उस टाइम पर जो सिचुएशन था, मैंने तुम्हें कहा था एक टॉर्मोइल सिचुएशन पूरे कंट्री, पूरे इंडिया में था. सो बहुत लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग अपोज कर रहे थे, पूरे कंट्री में एक तरह का रिएट का सिचुएशन क्रिएट हुआ था. तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली
डिसीजन दिया कि उसको इसमें क्रीमी लेयर सिस्टम्स को लागू किया जाए, तो जिस वजह से ये जो सिचुएशन उस टाइम पर क्रिएट हुआ था वो उसमें ठंड पड़ गए, उसमें सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा सका। लेकिन वो कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ जुडिशियरी, इफ देयर इज नो सच जुडिशियरी, द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशियरी इज एग्जिस्टेड, देन व्हाट विल बी हैपन। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं होता, एक जुडिशियरी इंस्टीट्यूशन नहीं होता, तो क्या होता? तो डेफिनेटली रिएट स्टार्ट हो जाता। इस बिल को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होते, कुछ लोग जो सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग जो अपोज कर रहे थे, उनके बीच में रिएट स्टार्ट होता, बहुत सारे लोगों की मौत होती और बहुत सारे प्रॉब्लम भी सोसाइटी में या कंट्री में जो कि हो सकता था, या इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो सकता था। सो वी कैन से दैट जुडिशियरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. So after learning about this, we are able to understand that the judiciary is the very important, is the most political institutions in our country after legislature and executive. तो legislature और executive के बाद, parliament और executive के बाद जो judiciary होता है, judiciary सबसे important political institutions में से एक है. So my questions is that what do you mean by judiciary? जुडिशियरी के बारे में जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा सवाल ये है तुम लोगों को कि जुडिशियरी क्या है? जुडिशियरी कहने से हमें क्या समझ में आता है? What do you mean by judiciary? Judiciary means the court systems of our country that is called as the judiciary. तो हमारे कंट्री में जो सारे कोर्ट की सिस्टम्स है, उसी कोर्ट सिस्टम्स को जुडिशियरी कहा जाता है. All the court at different level in country put together, that is called as the judiciary. As you know, there is a Supreme Court at national level in our country and also in every country. So Supreme Court जो है वो हमारा national level में काम करता है for whole country. Then High Court at state level. So वहाँ पर हमारा हर एक states में एक एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा. कभी कभार 2-3 स्टेट्स को मिलाकर एक हाई कोर्ट भी हो सकता है. नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में जैसे कि ऐसा से एग्जांपल तुम्हें देखने के लिए मिलेगा. पंजाब हरियाणा इज ऑल्सो शेयरिंग इक्वल ओनली वन हाई कोर्ट. तो वो भी पंजाब और हरियाणा देखोगे तो एग्जांपल को लोगे तो वहां पर भी तुम्हें ये देखने के लिए मिलेगा कि पंजाब और हरियाणा का भी एक ही हाई कोर्ट है. तो ऐसा नहीं कि हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होता है, बट मोस्टली जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट इज एग्जिस्टेड एट स्टेट लेवल, सुप्रीम कोर्ट इज एग्जिस्टेड एट नेशनल लेवल and high court is existed at state level. So that's why we can say that high court is situated at every state. तो यहाँ पर हर एक स्टेट के लिए होता है. Then लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट सबऑर्डिनेट लेवल और एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है और सबऑर्डिनेट कोर्ट भी होता है, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है. और उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है. Okay, so these court systems, Supreme Court, High Court, District Court और subordinate courts, these court systems is called as the judiciary. तो ये whole जो court systems है, यहाँ पर मैंने तुम्हें ये पिरामिड स्ट्रक्चर में दिखाया है कि सबसे जो ऊपर है ये हाई कोर्ट है और उसका नंबर सिर्फ एक है. देन सेकेंड में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर में है और उसका नंबर एक है, मतलब हमारे कंट्री में एक ही सुप्रीम कोर्ट है. देन उसके नीचे आएंगे हाई कोर्ट जो कि स्टेट लेवल है, एंड सेवरल हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया. And there is a Google homework for you. You have to find out that how many high courts are there in India. तो तुम्हारे लिए मैं एक टास्क देता हूं कि तुम्हें ढूंढना है हमारे कंट्री में प्रेजेंटली कितने हाई कोर्ट है. तो जैसे कि तुम्हें पता है प्रेजेंटली वी हैव 28 स्टेट्स. But how many high courts are there in India? 28 स्टेट के लिए 28 हाई कोर्ट नहीं है, तो कितने हाई कोर्ट है ये आंसर तुम्हें मुझे देना है कमेंट सेक्शन में. देन द थर्ड वन इज द और लोअर कोर्ट. सो ये जो कोर्ट सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, दैट इज द सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो ये पूरे कोर्ट सिस्टम्स को ही, पिरामिड स्ट्रक्चर जो सिस्टम मैंने कहा है यहाँ पर दिखाया है, इसी सिस्टम्स को क्या कहा जाता है, जो कि हमारा जुडिशियरी कहा जाता है. देन देखो वो क्या कह रहा है, इंडिया इज एन इंटीग्रेटेड जुडिशियरी. What do you mean by integrated judiciary? That means whenever the lower court is always bound
to act upon the advice of the higher court. तो हाई कोर्ट जो ऑर्डर देगी उसको लोअर कोर्ट फॉलो करेगी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉलो करेगी. सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगी उस ऑर्डर को हाई कोर्ट फॉलो करेगी. सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर को बोथ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी फॉलो करेंगे. तो उस वजह से ये अगर तुम्हें उसी तरह अगर इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट देन यू कैन गो टू द हाई कोर्ट. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट इंडियन जुडिशियरी इज एन इंटीग्रेटेड जुडिशियरी. ये सब जो कि एक लाइन में एक साथ बंधे हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगी उसको सबऑर्डिनेट कोर्ट मानने के लिए बाउंड है और सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजंस होता है दैट इज बाउंड अपॉन द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. सो दैट्स व्हाई इंडियन जुडिशियरी इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेटेड जुडिशियरी. Then judiciary resolve the disputes such as the disputes between the citizen of the country. तो हमने ये पढ़ा that the major functions of the judiciary is to resolve the disputes. But the question is that which types of disputes are resolved by the judiciary. हमने देखा कि जुडिशियरी की जो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज होता है जो फंक्शंस होता है वो क्या होता है कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना. लेकिन यहाँ पर ये सवाल है कि किस तरह का जो कि डिस्प्यूट्स को हमारा जुडिशियरी रिजॉल्व करता है. तो वो कह रहा है देखो द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सिटीजन ऑफ द कंट्री. इफ देयर इज एनी डिस्टर्बेंसेस अराइजेस, इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन टू और मोर पीपल और बिटवीन टू community, between two group of people. So at that time these disputes, these conflicts can be resolved by the judiciary. So it may be resolved by the district court, it may be resolved by the high court, or it may be resolved by the supreme court. But this type of disputes mostly resolved by the judiciary. Then the second, disputes between the citizen and the government. So अगर सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स आता है, एग्जाम्पल ले लो. एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूं कि गवर्नमेंट की कोई भी पोस्ट के लिए क्या है एडवर्टाइजमेंट निकला है. सो उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो जिस वजह से क्या करना चाहता है एक कैंडिडेट गवर्नमेंट के खिलाफ में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोर्ट में केस करना चाहता है. ओके तो उस टाइम पर वो क्या कर सकता है, कोर्ट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस कर सकता है. या फिर अगर कोई भी सिटीजन को गवर्नमेंट की किसी भी फैसिलिटीज से वंचित होना पड़ता है तो उस टाइम पर भी कोई भी कैंडिडेट या कोई भी सिटीजन क्या करता है, गवर्नमेंट के खिलाफ में कोर्ट में जो कि केस फाइल कर सकता है या कोर्ट में केस कर सकता है. सो दिस टाइप्स ऑफ disputes or these types of conflict, whenever conflict arises between citizens and government, that types of disputes can also be resolved by the judiciary. Then the third dispute, that is disputes between two or more state governments. So whenever any disputes arises between the two or more state government, that kind of disputes also resolved by the supreme court or by the high court etc. तो कोर्ट या जुडिशियरी के द्वारा उसको भी रिजॉल्व किया जाता है. टेक एन एग्जांपल that as you know there is a disputes arises between Chhattisgarh and Odisha regarding the Mahanadi river disputes. And also there is a disputes between the Karnataka and Tamil Nadu regarding the Kaveri river disputes. So that's why these types of disputes can also be resolved by the judiciary. दो और दो से ज्यादा स्टेट के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है, अलग अलग स्टेट्स के बीच में भी कोई डिस्प्यूट्स होता है, सो उस टाइप की डिस्प्यूट्स भी जो कि किसके द्वारा, जुडिशियरी के द्वारा रिजॉल्व किया जाता है. Then the disputes between central and state government. So if any disputes arises between central and state government, so this type of disputes also can be resolved by the central judiciary. तो उस वो भी जुडिशियरी के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए और सेंट्रल डिसीजन को, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिसीजंस को या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया लॉ को अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट विरोध करते होंगे और वहां पर कोई डिस्प्यूट्स होता है दोनों गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या एक तरफ बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस तरह का डिस्प्यूट्स को भी जुडिशियरी के द्वारा रिजॉल्व किया जाता है. ओके देन वो कह रहा है देखो द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. What do you mean by Supreme Court is the highest court of appeal? That means whenever, as I have already told you earlier, that whenever you are not satisfied with the decision or the judgment of the lower court, then you can appeal in the higher court. So here, if you are not satisfied with the judgment of the district court, then you can file a case in the high court, or you can appeal in the high court for reconsideration of the case. Then if you are also not happy with the judgment, or if you are not happy with the judgment of the high court, then you can again appeal in the supreme court. But
if you are not happy with the judgment of the Supreme Court, so there is no such above court is facilities is available for appeal. So that's why it is considered at Supreme Court is the highest court of appeal in civil and criminal cases. तो सिविल जैसे कि सिविल और क्रिमिनल केसेस के बारे में तुम लोगों ने स्टैंडर्ड 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. सिविल जैसे कि कोई भी तुम्हारे लैंड के प्रॉपर्टी इसके रिगार्डिंग कोई भी केस होता है तो उसको सिविल केसेस कहा जाता है. देन मर्डर की जैसा केस होता है तो चोरी डकैती मर्डर इस तरह का केस होता है तो उसको क्रिमिनल केस कहा जाता है. तो सिविल हो या क्रिमिनल केस हो, अगर तुम लोअर कोर्ट की डिसीजन में जो कि खुश नहीं हो तो तुम हाई कोर्ट के जाओगे, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो. हाई कोर्ट की डिसीजन में अगर खुश नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो. लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो डिसीजन है, जो जजमेंट है, यू आर बाउंड टू ओबे दैट जजमेंट बिकॉज एज आई टोल्ड यू उसके ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है अपील करने के लिए. तो उस वजह से सुप्रीम कोर्ट को हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता है. इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट. तो जैसे मैंने कहा हाई कोर्ट की डिसीजन को ये सुनते हैं, क्योंकि तुम अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डिसीजन में खुश नहीं हो तो तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते. तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अगेन अपील इन द हाई कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट में खुश नहीं हो, हाई कोर्ट में जाओगे. हाई कोर्ट की जजमेंट में अगर खुश नहीं हो तो फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो. तो उस वजह से ये जो कि मैंने लिखा है, इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट. देन देखो दैट इंडियन इन जुडिशियरी इज एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशियरी. सो इंडिया की जो जुडिशियरी है हमारा, इंडियन जुडिशियरी इज मोस्ट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशियरी. सो व्हाट द क्वेश्चन इज दैट व्हाई जुडिशियरी शुड बी इंडिपेंडेंट. जुडिशियरी इंडिपेंडेंट क्यों होना जरूरी है? ओके, तो वो कह रहा है देखो, सो दैट व्हाई इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज रिक्वायर्ड बिकॉज द जुडिशियरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट. द जुडिशियरी शुड बी इंडिपेंडेंट सो दैट द जुडिशियरी कैन वर्क इम्पार्शियली फ्री फ्रॉम द प्रेशर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. तो इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स द जुडिशियरी हियर इन इंडिया इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर टू ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. तो यहाँ इंडिया की जो जुडिशियरी होता है वो एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के अंडर में काम नहीं करता है. ये पार्लियामेंट के अंडर में भी काम नहीं करता है या एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम नहीं करता है, या पार्लियामेंट और पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफियर इन द मैटर ऑफ द जुडिशियरी. सो जुडिशियरी की मैटर में पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव भी किसी भी तरह का इंटरफियर नहीं कर सकते. तो जो भी डिसीजन जुडिशियरी लेगा वो पार्लियामेंट के ऊपर भी बाउंड होता है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी बाउंड होता है, बट जुडिशियरी के ऊपर पार्लियामेंट की कोई भी पावर नहीं है या एग्जीक्यूटिव्स के भी कोई पावर नहीं है. क्यों? बिकॉज सोचो, अगर हमारा जुडिशियरी इफ आवर जुडिशियरी इज वर्क अंडर द एग्जीक्यूटिव एंड अंडर द पार्लियामेंट, then can judiciary work independently? Can judiciary give an judgment impartially? No, it may not be possible. अगर पार्लियामेंट के कंट्रोल में जुडिशियरी काम करेगी, एग्जीक्यूटिव की कंट्रोल में जुडिशियरी काम करेगी, तो हो सकता है वहां पर जो जजमेंट कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा उसमें पार्शियलिटी हो सकता है. तो इसी तरह का इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करने के लिए इंडियन जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट रखा गया है. Then the question is that how this independence is ensured. As I told you that Indian judiciary is an independent judiciary and most powerful judiciary. But the question is that how this independence is ensured. तो इंडिपेंडेंट तो मैंने कह दिया, लेकिन ये इंडिपेंडेंस को इंश्योर कैसे किया जाता है? फर्स्ट थिंग इज दैट थ्रू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. Through the appointment of the judges, we can ensure the independence of our judiciary. How? तो यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता है या आता होगा कि जजेस के अपॉइंटमेंट के साथ जुडिशियरी कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है. कैसे? बिकॉज द अपॉइंट द चीफ जस्टिस और द जजेस ऑफ द जुडिशियरी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. So that means here the judiciary, the judges are not appointed by the prime minister or by the executives or by the parliament. The judges of the Supreme Court and High Court are appointed by the President of India on the advice of Prime Minister and in consultation with Chief Justice of the Supreme Court.
तो यहाँ पर ना प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चीफ जस्टिस जो कि जजेस को अपॉइंटमेंट किया जाता है, ना हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो उस वजह से जुडिशियरी के जो जजेस होते हैं, जजेस को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर यह कहा दैट दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो तुम्हारे दिमाग में सवाल आता होगा, सर आपने तो कहा कि प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपने फिर भी यह कहा दैट प्रेसिडेंट अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो प्राइम मिनिस्टर तो उनको कंट्रोल कर लेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के हिसाब से प्रेसिडेंट किसी भी व्यक्ति को जजेस के तौर पर या चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंटमेंट देते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर तो उनका ऊपर जजेस के ऊपर कंट्रोल होगा नहीं। क्यों? प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट अपॉइंट एनी पर्सन एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज पर देयर चॉइस। तो उनकी चॉइस के हिसाब से वो किसी को अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइस टू द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस टू एनी पर्सन इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस है उनके साथ क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे, और उनके बाद क्या होगा, जाकर प्रेसिडेंट को सजेशन देंगे कि किसको अगले चीफ जस्टिस की तौर पर अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रेजेंट चीफ जस्टिस की फोटो तुम्हें पिक्चर यहाँ पर डाला है। द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज हिज नेम इज जस्टिस एन.वी. रमन्ना। ही इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये देखो, ये सवाल इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछना है। क्यों? क्योंकि ये जो चीफ जस्टिस मैंने तुम्हें यहां पर कहा है, ऑलरेडी मेंशन भी किया है, ही इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्योंकि ये चीफ जस्टिस चेंजेस हो सकते हैं, हर टाइम चेंजेस होते रहते हैं, 5 महीने 6 महीने या 1 साल 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर ये चेंजेस होते रहते हैं। तो उस वजह से मैंने अभी उनका फोटो डाला है। उनके पहले कोई और थे, उनके बाद भी कोई और आएंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे, तो ये चेंजेस होते रहते हैं। तो कौन चीफ जस्टिस हो सकता है? हु कैन बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? सो द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किनको अपॉइंटमेंट किया जाता है? द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सीनियर मोस्ट, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द एज, द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सीनियरिटी की बेसिस पर, एज की बेसिस पर जो जज सुप्रीम कोर्ट, देयर आर सो मेनी जजेस आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट। अनदर होमवर्क फॉर यू दैट यू हैव टू फाइंड आउट प्रेजेंटली हाउ मेनी जजेस आर देयर इन आवर इंडियन सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस है, ये तुम्हें उनके नंबर को फाइंड आउट करना है। तो जितने भी जजेस होते हैं उनमें से जो सबसे सीनियर मोस्ट, जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग होते हैं, तो उन्हीं को क्या किया जाता है? चीफ जस्टिस की, प्रेजेंट चीफ जस्टिस की एडवाइस के तौर पर नेक्स्ट चीफ जस्टिस के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। Then the next point is that how can we ensure the independence of the judiciary? Because it is nearly impossible to remove a judge. That means after the appointment of the judges by the president, after the appointment of the chief justice by the president, it is nearly impossible to remove a judge. It is nearly impossible to remove the chief justice of India. एक बार चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होने के बाद उनको उनकी पोजीशन से निकालना, चीफ जस्टिस की पोजीशन से निकालना, जो कि बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। ये बिल्कुल नियरली इम्पॉसिबल इसीलिए मेंशन किया गया है क्योंकि ये नामुमकिन है। क्यों? बिकॉज ही और सी कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन पास्ड सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। So the removal process of the Chief Justice of India is called as the impeachment motion. तो जिस प्रोसेस के जरिए हमारे चीफ जस्टिस को रिमूव किया जाता है अपने पोस्ट से, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इम्पीचमेंट मोशन कहा जाता है। देन कैसे जजेस को रिमूव किया जाएगा? ही और सी कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन पास्ड सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पहले पार्लियामेंट की 2 हाउसेस में एक इम्पीचमेंट मोशन बिल को दोनों हाउसेस में मिनिमम 2/3 मेजोरिटी मेंबर से पास करना पड़ेगा। ओके, दोनों हाउसेस, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी इम्पीचमेंट मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और तो दोनों हाउसेस में मिनिमम 2/3 मेजोरिटी से उस इम्पीचमेंट मोशन को पास करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को निकाला जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है। तो ऐसा जो कि इंडियन हिस्ट्री में आज तक कभी भी नहीं हुआ है, ऐसा आगे भी शायद नहीं होगा। ओके,
तो ऐसा विश्वास भी है कि ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि तभी उनको निकाला जाता है अगर उनके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस है, या फिर वो ही इज इनकैपेबल फॉर दैट पोजीशन. सो एट दैट टाइम, एट दैट सिचुएशन, he or she can be removed from their position. Okay. Then देखो, इंडियन जुडिशियरी इज द मोस्ट पावरफुल जुडिशियरी ऑफ द वर्ल्ड. तो इंडियन जो जुडिशियरी है, मैंने जैसे कहा इंडियन जुडिशियरी इज एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशियरी. तो इंडिपेंडेंट कैसे है और उसको कैसे इंश्योर किया जाता है, मैंने तुम्हें यहां पर डिस्कस करके बताया. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इंडियन जुडिशियरी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशियरी ऑफ द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड में जितने सारे जुडिशियरी है, तो उसमें से इंडिया की जुडिशियरी जो कि पावरफुल जुडिशियरी में से एक है. तो इंडिया, दुनिया में सिर्फ, वर्ल्ड में सिर्फ एक ही इंडिया की जुडिशियरी पावरफुल नहीं है, बहुत सारे जो की जुडिशियरी पावरफुल है. तो उस वजह से यहां पर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है दैट इंडियन जुडिशियरी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशियरी इन द वर्ल्ड. तो जितने पावरफुल जुडिशियरी है पूरे वर्ल्ड में, उसमें से हमारा जुडिशियरी भी एक पावरफुल जुडिशियरी होता है. Why it is considered that Indian judiciary is the most powerful judiciary of the world? Because Supreme Court and High Courts have the power to interpret the constitution of the country. तो वो कह रहा है, देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. तो हमारा जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, वो सही है या गलत है, उसको व्याख्या करना, उसको इंटरप्रेट करने का पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास है. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे तुम्हें पता है, आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज प्रेजेंटली नॉट देयर. तो अभी तो वो नहीं है. तो कॉन्स्टिट्यूशन सही है या उसमें कुछ गलत हुआ, उसको इंश्योर कौन करेगी? तो उस वजह से उसको इंश्योर हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं. द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ. सो इससे क्या पता चलता है? दैट मीन्स वेन एवर एनी लॉ इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैव द पावर टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ. तो जो लॉ को पार्लियामेंट ने बनाया, उस लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोसेस को फॉलो करके बनाया गया है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन वहां पर फॉलो हुआ है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को वायोलेट वो होता है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली वो वैलिड होगा या नहीं, ये क्या कौन इंश्योर करता है? जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको इंश्योर करते हैं. ओके, Supreme Court and High Court mostly determine the constitutional validity of any law which is passed by the Parliament. Then the second thing is that the power of judicial review. Indian judiciary have the power of judicial review. So ये judicial review, क्योंकि मैंने जैसे कहा, the law which is passed by the Parliament can be interpreted by the Supreme Court and High Court, can be reviewed by the Supreme Court and High Court. तो वो सही है या गलत है, उसको रिव्यू करने का पावर भी हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास में है. तो उस वजह से इसको जुडिशियल रिव्यू पावर जुडिशियरी का कहा जाता है, और उस वजह से जुडिशियरी जो कि पार्लियामेंट से और एग्जीक्यूटिव से भी पावरफुल होता है. Then the third point is that judiciary acts as the guardian of the fundamental rights. So as you know, our constitution, the Indian constitution guarantees 6 fundamental rights to its citizen. And whenever any of the 6 fundamental is violated by the government or by any individual person, so at that time, at that situation, Supreme Court or the judiciary act as the guardian of your fundamental rights. तो वो तुम्हारा, जैसे कि घर में हमारे जो फादर होते हैं, पेरेंट्स वो होते हैं, वो हमारा गार्डियन होते हैं, वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं. तो उसी तरह हमारा जो फंडामेंटल राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिया है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स सरकार के द्वारा हो या फिर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा वायोलेट होता है, या फंडामेंटल राइट को एंजॉय करने से हमें कोई रोकता है, तो उस टाइम पर हमें जुडिशियरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और हमारा फंडामेंटल राइट्स की गार्डियन की तरह भी काम करता है. Then the next point is that through public interest litigation, judiciary works for the protection of public interest. PIL के बारे में भी तुम लोगों ने स्टैंडर्ड 8th में पढ़ चुके हो. तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? पब्लिक, एक लार्ज पब्लिक की इंटरेस्ट के लिए अगर कोई भी सरकार ने लॉ बनाया है और उस लॉ की वजह से एक लार्ज कम्युनिटी को प्रॉब्लम होने वाला है, या जैसे कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं है, एनवायरनमेंट जो है दिल्ली का एनवायरनमेंट वो बहुत पॉल्यूशन है. सो तुम उस टाइम पर क्या कर सकते हो? इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा लोग बीमार होते हैं, लोगों को बहुत सारा लंग्स प्रॉब्लम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स भी होता है. तो इसीलिए
तुम कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, एक पीआईएल कोर्ट में फाइल कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। और जुडिशियरी क्या करता है, जुडिशियरी थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल थ्रू पीआईएल वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जुडिशियरी पीआईएल के जरिए क्या करता है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट जुडिशियरी एंजॉय ए हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। हाउ जुडिशियरी एंजॉय ए हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। तो लोगों का भरोसा जुडिशियरी के ऊपर इतना ज्यादा क्यों है? बिकॉज आज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर दैट जुडिशियरी इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। The Indian judiciary is totally independent from the other two organs of the government, that is from executive and legislature. तो ये executive या legislature से independent होने की वजह से लोगों का जो भरोसा होता है वो ज्यादा उसकी भरोसा जुडिशियरी के ऊपर होता है। लोगों को ये भरोसा है कि जुडिशियरी जो भी डिसीजंस लेगा वो इम्पार्शियल डिसीजंस लेगा, वो किसी भी तरह का पार्शियलिटी डिसीजन मेकिंग में नहीं करेगी। तो दैट्स व्हाई, तो उस वजह से जो जुडिशियरी है वो हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंजॉय करता है लोगों के बीच में। Okay, so that's all for today, and finally we have completed our chapter. So let's recall what we had discussed in our today's class. So in our today's class we had discussed about the judiciary, the Indian judiciary and the structure of the Indian judiciary. As I told you that the Supreme Court at national level, High Court is situated at the state level, and District Court at district level. Then thereafter we had discussed that what are the major functions of the judiciary, and we saw that the major duty, major functions of the judiciary to resolve the disputes, and which types of disputes is resolved by the judiciary. The disputes between the citizens of the country, the disputes between the citizens and government, the disputes between the two or more state government, the dispute between the central and state government. So these types of disputes can be resolved by the judiciary. And after that we had discussed that the judiciary or the Supreme Court is the highest court of appeal in civil and criminal cases. Then we had discussed that Indian judiciary is an independent and powerful judiciary, and why it is called as the independent judiciary, and how this independence is ensured, and why the judiciary is called as the powerful judiciary in the world. Okay, so at last finally we had completed the chapter. So at last I want to ask you some questions from this portion, from this topic, which may ask in your annual exam. So the first question is that the judges of Supreme Court and High Courts are appointed by whom? So as we had discussed that the judges of the Supreme Court and High Courts are, the Chief Justice of the Supreme Courts are appointed by the President. तो second question भी मैंने वहीं पर लिखा है, देखो, the Chief Justice of India is appointed by whom? तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो इंडिया के जितने सारे जो कि मेजर इंस्टीट्यूशन से, तो मेजर इंस्टीट्यूशन के जितने सारे हेड होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, देन चीफ जस्टिस, डिफेंस फोर्सेस, तो जितने सारे मेजर इंस्टीट्यूशंस की अपॉइंटमेंट, हेड को अपॉइंटमेंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो चीफ जस्टिस की भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। देन ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विद द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द एन.वी. रमना, बट रिमेंबर दैट द प्रेजेंट चीफ जस्टिस इज ऑलवेज चेंजिंग। तो ये चेंजेस हो सकते हैं उनका, तो अगर टाइम पीरियड उनका एज हो जाता है, टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो ये चेंजेस होते रहते हैं। तो उस वजह से अगर क्वेश्चन आ गया और ये उस टाइम पर नहीं होंगे तो इनका नाम मत लिखना। ओके, देन you may get some long questions from this topic. The first long question you may ask in your annual exam, that is the discuss the powers and functions of the judiciary. मतलब किस तरह का वो काम करते हैं, कैसे रिजॉल्व को डिस्प्यूट करते हैं और किस किस के बीच में रिजॉल्व को डिस्प्यूट करते हैं, वो तुम्हें मेंशन करना है। दैट द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द जुडिशियरी इज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स। देन व्हिच टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स रिजॉल्व? द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सिटीजन, द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सिटीजन एंड गवर्नमेंट, द डिस्प्यूट्स बिटवीन द टू स्टेट गवर्नमेंट, the disputes between the central and state government. So these are the major functions performed by the judiciary. And also you can write that judiciary acts as the guardian of the fundamental rights. The judiciary has the power of judicial review. So you can mention all these points. Then after that you may also get an questions that Indian judiciary is considered as the most powerful judiciary of the world. सो क्यों जुडिशियरी को मोस्ट पावरफुल जुडिशियरी कहा जाता है? बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. They also determine the constitutional validity of any law. The power of judicial review, the Supreme Court and the Indian judiciary have the judicial review power. The judiciary acts as the guardian of the fundamental rights. Through public interest litigation, judiciary works for the protection of the public interest. Judiciary enjoy a high level of confidence among the people. So that's why, due to
all these points, the judiciary, Indian judiciary is considered as the most powerful judiciary in the world. Okay, so this is all about the chapter working of the institution. So finally हम ये चैप्टर को अभी कंप्लीट कर चुके हैं, पूरे पास्ट लेकर लास्ट तक हमने, जो कि ऑफिस मेमोरेंडम से लेकर जुडिशियरी की पावरफुल तक और पावर तक हमने डिस्कस कर चुके हैं. सो अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं उसकी रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूंगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.